Good morning, children. So, welcome to the this online class, your geography class, chapter 4. So, we are already discussed so many important topics of this chapter, and now we move to our some another topics. Remaining two or three topics are, and I hope that today we will finish this chapter. But before that, it's very necessary that the content is very. It should be necessary that the content is clear to all of you, and because of that, I'll conduct some tests on the basis of this chapter. Some assignment I'll give you. We will discuss. So let's start today our topic. We already discussed, but superficially we once again recapitalize the previous topic. So everybody, you know that already we discussed about the food security. Food security means how, where, when. What do you mean by food security? We already discussed in this that food security means availability of food to all. Its insurity is given by the government, and where this food security is required. The food security is required, and we can say the area where the deficiency of food is there, scarcity of, or some type of disasters reasons, natural calamity could be also poor regions also. So in this, it requires that in these regions, the food security should be ensured by the government. And one more thing, the question arises how the government ensured this food security. So there are two components. What are these two components? The two components are PDS system and buffer stock. And who procure these grains from the farmers on the, you everybody know that it is on the MSP, minimum support price. It is through by FCI. It is through by FCI, and FCI that procured this grains and stock it and channelized this stock through the PDS system, public distribution system. So a number of challenges were also we discussed, like challenges. We can say that challenge like scarcity of water and subsidized inputs, that is provided by the government. That's why sometimes they overuse these inputs. And green revolution was also there. It also proved a challenge because the government initially the government has given only the MSP on these rice and wheat pulses, wheat crops. But later, because of all these reasons, the farmers they shifted from another to this crop, and net zone area became very reduced of all these reasons. तो ये सारे challenges हमने discuss किए थे. अब इन challenges को overcome कैसे किया जाए, how we can overcome all these challenges. So there are today's topic is how we can become self sufficient. सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर. हम आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए उस चीज के लिए, सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, तो हम वो देखते हैं. सेल्फ सफिशिएंट self sufficiency can be attained if government provides proper agricultural infrastructure. First of all, what do you mean by agriculture infrastructure? Means proper input should be there, tools should be there, and credit linkage. Credit here means on very, we can say low interest rate loans should be also given to farmers, and also encourages the use of latest techniques. Because as we know through this chapter, we come to understand these farmers, they are just practicing their old method. So that's why their yield are not very good. The we can say that crops are not in bumper crops are not there because of all these reasons. Their conditions is poor. So that's why to attain this self sufficiency, the government provide proper agriculture infrastructure, credit linkage, and also latest technology. Three aspects are there. Instead of concentrating only on wheat or rice, as we already discussed कि गवर्नमेंट ने जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो किस पर फोकस किया था, व्हीट और राइस पर. धीरे धीरे क्या स्टार्ट हुआ कि सभी फार्मर्स व्हीट और राइस पे शिफ्ट होने लगे. उसकी वजह से क्या होने लगा, उसकी वजह से ये होने लगा कि
जो अनदर क्रॉप्स हैं उनका नेट सोन एरिया कम होने लगा, जैसे हमने कहा पल्सेस हैं, दूसरी क्रॉप्स हैं, नॉन फूड क्रॉप्स हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब करना क्या है, द फूड क्रॉप विद द बेटर ग्रोथ पोटेंशियल इन दैट पर्टिकुलर एरिया मस्ट बी एनकरेज, यानी नॉट ओनली दिस wheat and rice but another crops should be encouraged to grow in these particular area. Through this we can increase the net sown area. जैसे मैंने आपको बताया ना, net sown area क्या होता है, एक पर्टिकुलर ईयर में एक जो एरिया होता है, पर्टिकुलर लैंड हमको पता है लिमिटेड है, उस एकड़ ऑफ लैंड में जितना भी हमने पर्टिकुलर ईयर में ग्रो किया है जिस भी क्रॉप को, वो उस क्रॉप का क्या होगा, नेट सोन होगा। ठीक है, चाहे वो पल्स है, पल्सेस हो सकता है, ऑयल सीड्स हो सकते हैं। ठीक है, so it is required that the government also encourage the farmers for another food crops. Creation of necessary infrastructure. Now we will talk about infrastructure like irrigation facilities, availability of electricity may also attract private investment. अब private investment क्यों आएंगे, अगर आपको पता है, मैंने ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी कंट्रीज को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन है सेज, ठीक है, उसके थ्रू हम बहुत सारी फैसिलिटीज देते उनको जो है प्रोवाइड करते हैं, जिसके जैसे कि हमने कहा कि हम उनसे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी नहीं लेते, टैक्सेस नहीं लेते हैं, सभी तरह की फैसिलिटी देते हैं। इसी तरह से प्राइमरी सेक्टर में प्राइवेट लोगों को, यानी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको एनकरेज करने के लिए क्या करना होगा, गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देनी होगी, लाइक एक्स्ट्रा फैसिलिटीज लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज, availability of electricity, we can say another inputs also at a very subsidized rate, यानी लो रेट पे अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दे विल आल्सो टेक इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन प्राइमरी सेक्टर. The focus on increasing food grain production, which should be on a sustainable basis, it is very important in this geography. You will read about sustainable development in all chapters. Sustainable means without harming the environment. You are just meeting the present needs and also just keeping it or reserve the resources for coming generation. Sustainable basis is very important because today we require so many things, so many we can say goods, and it can be cope up by the production. हो सकता है पूरा, लेकिन हमें चीज का क्या ध्यान रखना है कि उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए फ्यूचर के लिए बचा के रखना है. सो ऑल्सो फ्री ट्रेड, अब जो बच्चों में आपको चीज क्लियर कर रही हूँ, it is also in your economics. But first of all, we have to understand here free trade in grains will create massive employment and reduce poverty in rural areas. क्या मतलब है फ्री ट्रेड का? देखो, आई थिंक आपने एलपीजी पढ़ा होगा. एलपीजी, जहां पर हम एलपीजी गैस की बात नहीं कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट. एलपीजी, liberalization, privatization, globalization. Liberalization, what do you mean by liberalization? Free trade policy. In this, liberalization का मतलब क्या होता है? Free trade policy, उसका मतलब होता है the government will remove all tariff duties or any obstacles in the path of trade. कि अगर globalization here where we interconnected with another countries through many means, जिनसे हम दूसरे देशों से जुड़ गए हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन किसके थ्रू हुआ है? ग्लोबलाइजेशन थ्रू मेनी मीन्स, यानी एजुकेशन के थ्रू हुआ है, आईटी के थ्रू हुआ है, मार्केट के थ्रू हुआ है, वी कैन से लेबर के थ्रू हुआ है. तो ये सब ग्लोबली हम कनेक्टेड हो गए, बिकॉज यू नो इवन द डिजीजेस आर ऑल्सो देयर. आज हम डिजीजेस से भी जुड़ गए. जो वायरस जो चाइना में हुआ था आज इंडिया तक पहुंच गया है और कंट्रीज में पहुंच गया है. तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दिस इज अ गुड एग्जांपल दैट वी आर ग्लोबली कनेक्टेड. अब हम इसको इकोनॉमी में देखें तो जहां पर फ्री ट्रेड होगा, फ्री ट्रेड मीन्स कि गवर्नमेंट जो भी, यानी इंडिया समझ लीजिए इसको एग्जांपल से, इंडिया के अंदर अगर कोई कंट्री इन्वेस्ट करना चाहती है तो इंडिया उसके इंपोर्ट पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगाएगा,
और उस ड्यूटी ना लगाने से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि यहाँ पर मैसिव प्रोडक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको अभी बताया सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पर गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज को अपनी कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्टिव जो है उसमें पॉलिसीज हैं। 5 या 6 की पॉलिसीज होती हैं, आफ्टर दैट द पॉलिसीज आर चेंज। So in this we know that free trade in grains will create massive employment. अब इसको हम समझेंगे कि अगर हमारा इंपोर्ट अगर हमारा फ्री ट्रेड होता है तो मैसिव एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा? उसका रीजन है कि अगर प्राइवेट सेक्टर भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? ज्यादा वर्क करना होगा, और उस वर्क के लिए हमें क्या जरूरत होगी? लेबर की। तो इस तरह से क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एंड रिड्यूस पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू नाउ। Here, because we are talking about food security, what is the future of India's food security? After discussing all these aspects, now we will discuss कि adopting some policies we can secure the future of India. But if we will not adopt all these measures and policies, the future of India's food security is not secured. So let's now discuss. Shift from cultivation of food crops to cultivation of fruits, vegetables, oilseeds, and industrial crop. This has led to reduction of net sown area under cereals and pulses. As you everybody know कि शिफ्टिंग क्यों हो गई कि जहां पर गवर्नमेंट एमएसपी दे रही है वहां पर फार्मर्स को लग रहा है कि यहाँ पर फिक्स तो रेट हमको मिलेगा ही मिलेगा, तो वो अपनी क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अगर फूड क्रॉप से कहाँ पर आ रहे हैं? फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, ऑयल सीड्स पे, इंडस्ट्रियल क्रॉप पे आ रहे हैं। तो जिन क्रॉप्स का से वो शिफ्ट हो रहे हैं उन क्रॉप्स का क्या होगा? नेट सोन एरिया कम हो जाएगा। समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल wheat, rice, pulses say now the farmers they shifted of growing fruits, vegetable, oilseeds and industrial crops. This shift that reduction of net sown area under cereals and pulses, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एरिया पे क्या होगा? लैंड हमारे पास लिमिटेड है। जस्ट कीप इन माइंड इन कि हमारे पास लैंड लिमिटेड है। अब आपके पास उस लैंड के ऊपर आप क्या ग्रो करते हैं डिपेंड्स। अगर आप सिर्फ इसी तरह के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, तो दूसरी जो क्रॉप्स हैं सीरियल्स और पल्सेस, उनका एरिया क्या हो जाएगा? नेट सोन एरिया कम हो जाएगा। कंपटीशन फॉर लैंड बिटवीन, नाउ the here one more thing is there why the India's future is not secured in food security. Competition between, like land between non-agricultural uses and agriculture has reduced net zone area. देखो, one reason is the net zone area reduce क्यों हो रहा है? Because of all these crops. Second reason is non-agricultural uses क्या होता है? For habitation, the land is using for habitation, for infrastructure, for industries, for factories and another purposes. अगर ये रीजन होता है and if there is a competition between the non-agricultural uses and agriculture, it will also leads to the reduce in net zone area. तो उससे भी वो कम होगा, क्योंकि जो लैंड आपने एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए रखी है उस लैंड का यूज हम नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में ले रहे हैं, तो इट इज वेरी क्लियर कि नेट जोन एरिया रिड्यूस होगा। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज डिक्लाइनिंग। अब प्रोडक्टिविटी क्यों लैंड की डिक्लाइन? देखो, स्टार्टिंग में जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की थी तो वहां पर हमने HYV सीड्स की बात की थी, न्यू टेक्नोलॉजी की बात की थी, बायोकेमिकल्स की बात की थी। बट इफ यू आर कंटिन्यूइंग दिस सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि लैंड की जो फर्टिलिटी है वो कम होगी कि नहीं? दैट्स व्हाई इट लीड्स टू डिक्लाइनिंग ड्यू टू फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। तो एक जिसको कहा जाए कि जहां पर हम स्टार्टिंग में हमें उन चीजों का बेनिफिट हो रहा था, लेटर क्या हो रहा है? उस चीज का हमें लॉस हो रहा है, लैंड की फर्टिलिटी जो है वो खत्म होती जा रही है। सो स्कैरसिटी ऑफ वाटर हैज ऑल्सो। अब हम यहाँ पर कुछ एक अलग सा मैं आपको और एक एस्पेक्ट बताने वाली हूँ। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो आपको पता है फार्मर्स भी दो तरह के होते हैं, बिग फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं। ठीक है,
अब बिग फार्मर्स के सामने अगर ये क्राइसिस होता है तो वो फिर भी मेंटेन करेगा, क्योंकि उसके पास क्या होगा, कोई उसका एसेट होगा, है ना, जिसको इसने अपने इन फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखा होगा। बट जो स्मॉल फार्मर्स है, इट इज द फार्मर्स हु आर टोटली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट एंड जमींदार्स एंड अनदर लैंड ओनर्स ऑल्सो, तो उनकी लाइफ सबसे ज्यादा मिजरेबल होगी, उनको सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस करने होंगे इन सब चीजों के लिए। और सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी अगर होगी तो वो स्मॉल फार्मर्स के सामने होगी, ठीक है। तो दिस इज द रीजन ऑल्सो। और सेकेंड थिंग हम बात कर रहे हैं कि जहां पर हम ऐसे सीरियल्स और ऐसे पल्सेस को ग्रो करने की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से लैंड एग्रीडेशन हो रहा है। लैंड एग्रीडेशन का केवल यही रीजन नहीं है कि हम बायोकेमिकल यूज करें, लैंड एग्रीडेशन का और क्या रीजन है उसको हम और समझ लेते हैं। लैंड एग्रीडेशन का रीजन है कि हम वाटर जो जिसको कहते हैं कि जहां पर जिन क्रॉप्स में वाटर का ज्यादा यूज हो रहा है, उन क्रॉप्स को उन एरियाज में ग्रो कर रहे हैं जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी कम है। वो कैसे? तो आपको पता है टेक्नोलॉजी आ गई है। टेक्नोलॉजी आने से क्या है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके का पंपिंग सिस्टम के थ्रू हम उस वाटर को क्या करते हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। और ओवर यूज करने से क्या हो गया है कि वाटर टेबल नीचे जाता जा रहा है, एक्विफायर्स जो हैं वो जो है सूखते जा रहे हैं, वेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, क्योंकि हम ओवर यूज कर रहे हैं। और उस वाटर का यूज कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? उन एरियाज में भी कर रहे हैं जहाँ लो रेनफॉल है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट राइस इन पंजाब, शुगर केन इन महाराष्ट्र। तो दिस अनसस्टेनेबल pumping जो सिस्टम है, इट हैज आल्सो रिड्यूस्ड वाटर स्टोरेज इन एक्विफर्स एंड many wells and tube wells has run dry. तो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज। तो इस ऐसे देखते हुए हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया जो है फूड सिक्योरिटी है इंडिया में, इट इज नॉट सिक्योर। बिग फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स की हमने बात की, तो स्मॉल फार्मर्स जो है उनको सबसे ज्यादा क्राइसिस फेस करने पड़ेंगे इन सारी कंडीशंस में, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि उनके पास इनपुट्स नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा एसेट नहीं है जहां पर वो अपने आप को इन्वेस्ट कर सके और अपने आप को बचा सके। तो वी सी दैट देयर इज अ डबल डिसएडवांटेज। डबल डिसएडवांटेज की हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि डबल डिसएडवांटेज किसको हो रहा है? स्मॉल फार्मर्स को। एक तरफ तो दे आर पेइंग हाई प्राइसेस फॉर HYV seeds and another. On the other hand, there is a on the other hand production reaches the market. देखो HYV seeds और इनका अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा? क्रॉप जो होगा उसका प्रोडक्शन, बम्पर जिसको कहते हैं, बम्पर प्रोडक्शन होगा। बम्पर प्रोडक्शन होने से क्या होगा? मार्केट में पहुंचेगा। मार्केट में पहुंचने से क्या होगा? उसकी क्रॉप का जो है रेट ज्यादा मिलेगा का कम मिलेगा? कम मिलेगा। उसका रीजन क्या है? डिमांड इतनी नहीं है जितना कि आप जो है उतना ज्यादा स्टॉक हो रहा है, उतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। हमेशा ध्यान रखना कि दो फैक्टर काम करते हैं। वो फैक्टर क्या है? अगर डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो रेट हाई होगा, इन्फ्लेशन होगा। और अगर डिमांड कम है और प्रोडक्शन ज्यादा है तो चीजें क्या मिलेगी आपको? सस्ती मिलेगी। तो इससे फार्मर्स को नुकसान होगा। कैसे होगा? दो तरफ से नुकसान हो रहा है कि एक तरफ तो वो ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनका काम ही यही है कि प्राइमरी सेक्टर में उनको प्रोडक्शन करना है, वो इसी में इंडल्ज हैं, तो इस वजह से उनका जॉब ही यही है, तो वो उस काम को कर रहे हैं, बट दे आर पेइंग हाई। ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन हो गया, मार्केट में गया वहां, लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस उनको मिली नहीं। तो दोनों तरफ से उनको जो है डिसएडवांटेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है। Scarcity of water has led to reduction of area under irrigation, whereas inefficient water management has led to water logging and salinity. So we also discussed कि water जहाँ पर water availability नहीं है, inefficient water है, वहां पर भी हम ज्यादा यूज करके क्या कर रहे हैं? वहां पर water की scarcity कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, salinity को बढ़ा रहे हैं। Now just read this table here. आपको 5 years टेबल दिख रही है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन इज हियर दिस कि आफ्टर द वी सी कि why food grains production has remained stagnant or fallen for 6 consecutive years. यहाँ पर 5 years का दे रखा है आपका, और हम इसको यहाँ तक 2009-10 तक डिस्कस करेंगे। यू सी राइस का प्रोडक्शन देखो, 2006 में 93, 96, 99, देन 89, 75 wheat का, 78, 80 इंक्रीजिंग,
but here it is 80 only. Chorus 18. Why I'm just saying it's still 80? Because we are using some new technology and method also, but in spite of that, the yield is only 80, 80.880. Chorus here, chorus grains, very, you know that millets are also jowar, bajra, ragi, chorus. 18, then 17.4, 16.3, then 16.6. Pulses की बात करें तो हम 14.2, 14.8, 14.6, 14.70. So we see that through this table, we see that the millions tons में दे रखा है कि food grains जो production है वो या तो फॉलन हुआ है या स्टेगनेंट हो गया. उसके क्या कारण है? लेट्स डिस्कस दिस कि उसके क्या रीजन रहे हैं. वो बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं. जैसे सबसे पहले हमने बात की थी लैंड डेग्रेडेशन की, ठीक है, वो एक रीजन रहा जिसमें हमने लैंड को डिग्रेड किया. ओवर यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक हमने वाटर का ज्यादा यूज किया, पावर सप्लाई का ज्यादा यूज किया, हमने अंडरग्राउंड वाटर को ज्यादा पंपिंग करके यूज किया. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां पर लैंड डेग्रेडेशन स्टार्ट हो गया. Why has food grains production remained stagnant and fallen for 5 consecutive years from the above table? वहां पर जो मैंने लास्ट वाली टेबल को इसलिए रीड नहीं किया था क्योंकि उसमें वो इंक्रीजिंग शो कर रहा था सारा. हमें क्वेश्चन हमें ये डिस्कस करना है रिमेन स्टेगनेंट. ये एक्चुअली टेबल आपकी न्यू उसके हिसाब से अगर हम ओल्ड टेबल देखें विच आई हैव इन माय बुक, इट इज अप टू 2005 और 4 to 5. It is very it is not increasing. So what are the reasons that consecutive years may fallen or stagnant? Because of the first of all land degradation. Land degradation you everybody know because of the overusing of we can say inputs, water power supply and all that. Reduce water storage because of all these reasons. पानी का ज़्यादा use हो रहा है aquifers due to unsustainable pumping. Inadequate storage and market facility. Second thing is जहां पर हम स्मॉल फार्मर्स की बात कर रहे हैं वहां पर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है उनके पास. ठीक है, समझ रहे हैं. अभी बम्पर स्टॉक हो गया है तो अगर उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी होती तो हो सकता है उसको स्टोर करके नेक्स्ट उसके अंदर उसको सेल करते क्रॉप्स को, लेकिन उनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेरी पुअर स्मॉल फार्मर्स. एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज आर ऑल्सो नॉट देयर. मार्केटिंग फैसिलिटी मीन्स जहां पर बम्पर प्रोडक्शन हो गया तो उनको उनकी मार्केट पे सेल जो प्राइस मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है. Farmers have to pay high prices for HYV seeds, fertilizers, but lack bargaining power to fix prices in their favor. But one advantage, what is the advantage is here? Lack bargaining power. Advantage भी है और disadvantage भी है. Bargaining power नहीं है यानी आपके जो है गवर्नमेंट ने MSP फिक्स कर दी है. हो सकता है कि उस टाइम उस क्रॉप का बहुत अच्छा दाम मिल सकता था, प्राइस मिल सकता था, लेकिन गवर्नमेंट से एमएसपी फिक्स होने से प्राइसेस क्या हो गया, उनको उतना ही मिलेगा जो फिक्स हो गया. इट कैन बी इन फेवर और इन फेवर ऑल्सो. हायर द सप्लाई लोअर इज द डिमांड. सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड कम है तो कॉस्ट क्या मिलेगा, कम. This cause distress sale. Distress means it is not good sale. Distressing it is distressing sale because इसका जो इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड हो रहे हैं वो स्मॉल फार्मर्स हो रहे हैं. उनको उनका प्राइस नहीं मिल रहा है और ज्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा. पॉवर्टी है, दूसरे फूड इनसिक्योरिटी टाइप्स ऑफ. Therefore, there can be no food security without security of small farmers. Through this all discussion, we come to the conclusion कि बिना नो फूड सिक्योरिटी विदाउट सिक्योरिटी यानी स्मॉल फार्मर्स को अगर इसकी सिक्योरिटी नहीं है यानी उनको स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं है, उसके बिना कोई भी फूड सिक्योरिटी वी कैन नॉट इमेजिन द फूड सिक्योरिटी इन India. I hope the topic is clear to you. Now we move to the last topic, impact of globalization on agriculture. First of all, we have to understand globalization. I told you globalization means interconnected between two or more countries. Yani interconnected between two or more countries means we can say that through many means, like we can say the labor, IT sector, market, goods, technology. Because of there are so many means जिससे कि हम globally connected हुए हैं. You everybody know कि आजकल तो अभी हम present time की बात करें तो हम जो है weapons को लेकर भी जो है globally connected हो गए हैं.
और जिसको कह सकते हैं कि इकोनॉमी को लेके भी कनेक्टेड हो गए हैं। तो वी आर ऑल कनेक्टेड, पॉलिटिकली वी आर कनेक्टेड, इकोनॉमिक वी आर कनेक्टेड। So in this way we see that globally we are connected. So impact of this globalization on agriculture we will discuss. Yeah, everybody know if we go back in our history. अगर हम हिस्ट्री में पढ़ें, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इंडिया में जो यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे, दे केम टू इंडिया ओनली फॉर ट्रेड, है ना। आए तो इंडिया में ट्रेड के लिए थे, बट लेटर दे व्हेन दे सी दे सॉ द वी कैन से दैट देयर वाज no political stability in India, no system was there, even the diversity was there, some disputes were also, social evils were also there. So they just they took the advantage of these all phenomena that was persisted at that time. India में जो conditions थी उनका उन्होंने फायदा उठाया और धीरे धीरे हमारे पूरे इंडिया का जो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सबके ऊपर क्या कर लिया, उनकी हैगमनी होगी, उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया। So they came to India for trade, especially for spices. In your earlier classes, I know that you already read कि spices के लिए वो यहाँ पर आए थे। Indian spices were exported to different countries. Silk route ध्यान होगा आपको कि Silk route वो रूट था जिसके थ्रू जो है many goods were exported and imported. चाइना जो है वो सिल्क जो है, ये सिल्क रूट, इट इज स्पेशली फ्रॉम चाइना की जो सिल्क है वो पूरी कंट्रीज में जाती थी। इंडिया के स्पाइसेस हैं, कॉटन है, ये सारे जो हैं पूरे कंट्रीज के अंदर जाते थे। तो इंडिया की जो इतनी फाइन कॉटन थी, तो सिल्क रूट वाज स्पेशली दिस ओनली वन सिल्क रूट वाज, नंबर ऑफ सिल्क रूट्स वर देयर। So spices were exported to different countries of the world and farmers were encouraged to grow these crops. उस समय ज्यादातर स्पाइसेस होते था एक्सपोर्ट और हमको बेनिफिट भी होता था। देखिए अगर हम अपने हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था, इंडिया को कभी भी किसी से इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी और इंडिया ने जो भी एक्सपोर्ट किया उसके बदले में हमेशा उसको क्या मिला, इन एक्सचेंज ऑफ ऑल दीज गुड्स, इंडिया ऑलवेज रिसीव्ड गोल्ड एंड another precious stone. That's why we can say that India was called a golden bird because of only that reason. इंडिया में कोई भी ऐसा जो है नई रीजन था कि उसके पास ये था, सब कुछ जो है दूसरी कंट्री से उसको मिला था, स्पेशली रोम से। Even today it is one of the important export items from India. During the British period, cotton belts of India attracted the, पता है आपको, इंडिया की मुसलिन है ना, इंडिया की जो मुसलिन थी है ना, और ये जो है बेस्ट क्वालिटी थी। उस समय ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जाता था इंडिया में, इंडिया से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जाता था, स्पेशली कॉटन क्लॉथ ब्रिटेन में। वहां जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ब्रिटिशर्स को लगा कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री है तो क्यों नहीं हम इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाएं। तो इंडिया से धीरे धीरे क्या हुआ, रॉ मटेरियल जाना स्टार्ट हुआ। फिर केवल कॉटन ही नहीं, जहां जहां ब्रिटिशर्स को लगा हमें इन क्रॉप्स में बेनिफिट है वो प्रेशराइज करने लगे। जैसे कि आपने चंपारण, आपने नेशनलिज्म इंडिया पढ़ लिया जिसमें चंपारण मूवमेंट पढ़ा था, जिसमें इंडिगो का था। इंडिगो नील की खेती होती है। नील की खेती क्या होती है बच्चों, ये अगर एक बार लैंड के ऊपर अगर ग्रो कर दी जाती है तो दूसरी जो है उसके ऊपर लैंड के ऊपर ग्रो क्रॉप कल्टीवेट नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल उसको क्या करती है, खराब कर देती है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन कि raw material for the textile, eventually cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industries. The Champaran movement started in 1917 in Bihar because the farmers of that region were forced to grow indigo for British textile industry. Under globalization, प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुई, आफ्टर 1990 के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। उसका रीजन क्या था, देखिए बच्चों, आज हो सकता है ये टॉपिक फिर कल आगे तक हो जाए क्योंकि मुझे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से समझाना होता है। अगर हम फॉरेन कंट्री अमेरिका की बात करें, यूएस की, वहां पर पॉपुलेशन कम है, वहां पर जो प्राइमरी सेक्टर में जो इंडल्ज हैं, फार्मर्स है, पीजेंट्स है, वो वेल ऑफ सेक्शन है वहां पे, उनको किसी तरह की कोई कमी नहीं है। उसका क्या रीजन है, उसका रीजन है कि वहां पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, उनको हर चीज पे सब्सिडी देती है, सब्सिडी देती है तो उसका वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होने से क्या करते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो वहां का जो फार्मर्स है वो क्या है, बहुत वेल ऑफ है, इस वजह से वहां की जो क्वालिटी है वो भी बहुत फाइन है क्योंकि वो हर चीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये चैलेंज है हमारे कि इंटरनेशनल मार्केट के साथ हमें कम्पीट करना एक चैलेंज है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है।
इंडिया में वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। यहाँ पर जो फूड ग्रेन्स है उनका ज्यादा कंजप्शन यही हो जाता है। हमारे पास जो क्रॉप्स हैं जिसको हम कह सकते हैं हाई वैल्यू क्रॉप्स, हाई वैल्यू क्रॉप्स कौन सी होती हैं? वो क्रॉप्स जिनकी हमें प्राइस ज्यादा मिले, तो वो हाई वैल्यू क्रॉप्स प्लांटेशन क्रॉप भी हो सकती हैं। तो हमारे पास सिर्फ स्पेसिफिक क्रॉप्स हैं जिनका हम जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसके बदले में हम जो है हमारी इकोनॉमी एनहांस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन बन रहा है वो है क्या कि ग्लोबली जो है इंडियन पीजेंट्स को जो है compete करना पड़ रहा है और वो कंपटीशन इतना स्टफ है कि सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ so many reasons, subsidized rates, technology and another reason. Now, after 19, Indian farmers exposed to new challenges despite India being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices. Our agricultural products are not able to compete with developed countries. Why? Due to their highly subsidized agriculture in those countries. I hope the topic is clear to you. The last is here. To make agriculture successful and profitable, proper thrust should be given to. What do you mean by thrust here? Direction. यानी अगर ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री का जो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है उसमें जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम करना है, तो सम मेजर शुड बी टेकन बाय द नॉट ओनली बाय द गवर्नमेंट बट बाय द इंडिविजुअल ऑल्सो. So proper thrust should be given to the improvement of the condition of marginal and small. Who are the vulnerable people here? Marginal and small farmers. The Green Revolution, it promised much, but it is being alleged that it has caused land degradation because of the overusing of chemicals, pesticides, insecticides, water resources, power supply. This leads to land degradation. The key word today is Gini Revolution. Gini is here genetic revolution. What do you mean by this genetic revolution is that you are using HYV seeds in this because of all these reasons which include genetic engineering. Genetic means technology. HYV seeds you are using in this and it leads to land degradation. In fact organic farming is much. जबकि दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि आज हम अगर मार्केट जाते हैं तो अगर उस पर ऑर्गेनिक लिखा होता है तो हम उसको परचेज कर लेते हैं बिकॉज इट इज इन वोक टुडे, इट इज इन सर्कुलेशन. आज इसका जो है प्रचलन है, फेमस है टुडे बिकॉज इट इज प्रैक्टिस्ड विदाउट फैक्ट्री मेड. हमें मालूम चल गया कि हमें ऑर्गेनिक जो है जो प्रोडक्ट्स हैं या गुड्स हैं उनका यूज क्यों करना चाहिए, बिकॉज हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेफ है. These are without made chemicals such as fertilizer. Natural तरीके से farming होती है, hence it does not affect environment in a negative manner. This is another aspect that the government and individual can use this method, organic farming. Indian farmers have a bleak future. Why Indian farmers have a bleak future? Future bleak क्यों है? Bleak का मतलब क्या है? It is not very hopeful. निराशापूर्ण है. If they continue growing food grown on the holdings that grow smaller and smaller. आपको पता है इंडिया की चैलेंज क्या, सारी चीजें हो चुकी हैं, बस हमें लास्ट में यही समझना है कि इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, लैंड होल्डिंग्स का है, लैंड फ्रेगमेंटेशन. छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट लैंड उसके ऊपर जो है ग्रो, ज्यादा क्रॉप्स का ग्रो नहीं होता है, इस वजह से पॉपुलेशन जो है उसकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही है. ऑन द अदर एंड वी सी दैट पॉपुलेशन राइजेस, इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न. So that's why the focus here that we should change our cropping pattern from cereals to high value crops. Cereals to high value crops. Tomorrow I will discuss you thoroughly why we shift to cereals to high value crops. This will increase incomes and reduce environmental degradation simultaneously. India's diverse climate can be harnessed to grow a wide range of high value crop. अगर हम भारत का क्लाइमेट देखें ना, जितनी डाइवर्सिटी है यहाँ पर हर तरह की क्रॉप जो है वाइड रेंज में हो सकती है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन that we are lag behind to in comparison to another country. Here cereals to high value crop का मतलब समझ लीजिए, जहाँ हम राइस और बीज की बात कर रहे हैं जिनका कंजप्शन इंडिया में ही हो जाता है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है. हमें ये सजेस्ट किया गया है कि हम हाई वैल्यू क्रॉप्स को ज्यादा ग्रो करें, इससे कम, और सीरियल्स को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं. इंपोर्ट पे क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी कम लगाई जाती है. अगर हाई वैल्यू क्रॉप पे होंगे तो यील्ड ज्यादा होगी और उसका हमको बेनिफिट भी होगा, ये मतलब है. Organic agriculture will adapt to climate change more quickly. That's why we should focus on organic farming. So आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है. ये जॉर्ज वॉशिंगटन की जो है उन्होंने एक कोट किया है, आई वुड रादर बी ऑन ए माई फार्म.
rather than be an emperor or of the world. यानी वो एक फार्मर अपने फार्म पे रहना पसंद करते, एक फार्मर एक पीजेंट रहना पसंद करते, बजाय इसके कि किसी वर्ल्ड के वो एम्परर हो. जॉर्ज वॉशिंगटन. So here we finished our chapter and we thoroughly discussed the whole chapter. Concepts are clear to you. Tomorrow we will discuss some assignment related to these chapters, some very small question MCQs. I just want to cover whole the chapter through this assignment, and I'll just very soon I'll provide you notes of this chapter. So today's our class is now over here, and tomorrow we will meet once again with assignment of this chapter. So I request you all the students, you go through the chapter. If you have any doubt, tomorrow you can ask me. Okay? Have a good day.